मुस्बत हो, आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह सच्चाई की रोशनी में आपके तमाम जायज सवालों का जवाब जायज तरीके से देंगे। एक बार मैं पूरे पिंडी के दोस्तों का और खसूसन साथियों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। शुक्रिया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यारी को जीने दो, यारी को कत्ले बंद करो, बंद करो, यारी को दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, अरे शाहजहां से सुनिए, रुकिए रुकिए। दहशतगर्द मुत्तहिदा, 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 दहशतगर्द मुत्तहिदा। यारी के यार रुक जाओ, अंदर नहीं जाना है, हम पिंडी में खड़े हैं, यारी में नहीं खड़े। आप इसको लपेट लो, बस खाली गत्तों को ऊपर रखो, आप अंदर आ जाओ। आजे आजे, कोई बात नहीं। ये वाला दो, ये वाला रहमान, इधर आओ रहमान, रहमान। ये कैमरा है, ठीक है, इससे जो है ना, हटो, सामने से हटो, सामने से हटो। बिल्किस बाजी साहिबा ये ऑर्गेनाइज़र है लेडीज़ विंग की, और तमाम लोग जो है लियारी सेंट्रल कमेटी के व एहलियान लियारी आपके सामने मौजूद है। मैं इकबाल काज़मी, ऑर्गेनाइज़र फ्रेंड ऑफ लियारी इंटरनेशनल, अपने बानी लॉर्ड नज़ीर अहमद, कन्वीनर हबीब जान बलोच, सरदार उज़ैर जान बलोच की हिदायत पर अपने हमरा एहलियान कराची की माओं, बहनों और बुज़ुर्गों के हमरा आज हम कराची से चलकर एहलियान पंजाब के पास अपना मुकदमा लेकर आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मुद्दई हैं और आप हजरात, आप तमाम साथी हजरात जो हैं वो एक अदालत की हैसियत अख्तियार रखते हैं। हमारा आपके पास आने का मकसद कराची और ख़ासकर लियारी के हालात से आगाही है। हम कराची के बेटे और बेटियां सवाल करते हैं, पंजाब के गयूर अवाम बताएं, क्या मुल्क ख़ासकर कराची को बचाने के लिए क्या आप अपने बहन भाइयों की आवाज़ पर खामोश रहेंगे? मोहतरम साफी भाइयों, कराची के हम आपके पास आने की वजह बयान कर दें। कराची में हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते,
ہماری زبان کو گولی لاٹھی آنسو گیس سے بند کیا جا رہا ہے. ہم پریس کلب کراچی تک جانے سے قاصر ہیں. ہماری امن کی ریلیوں پر فائرنگ کر کے ہمارے بچوں اور خواتین تک پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. ہم ان حالات میں آپ کے پاس نہیں آتے تو کہاں جاتے؟ محترم صحافی بھائیوں، کراچی کے اہم ترین علاقے لیاری کی آبادی 11 ٹاؤنز پر مشتمل ہے. اعداد و شمار کے مطابق لیاری کی کل آبادی 17 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے. کسی طور بھی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ 17 لاکھ افراد تمام کے تمام کرمنل ہو سکتے ہیں. کراچی میں نفاذ قانون اور جرائم کے خلاف پاکستان رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے. پاکستان رینجرز نے گزشتہ سال اور سال رواں کراچی میں قانون نافذ کرنے کے لیے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اپریل 2012 کے آخری ایام میں اور رواں ماہ میں لیاری میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں رینجرز کو شامل نہیں کیا گیا، جس کا صاف ثبوت یہ ہے کہ پولیس اسٹیٹ بنا کر جعلی گینگ وار لوگوں میں دکھا کر متحدہ قومی موومنٹ کی مرضی سے وہاں پر اپنا سیاسی تسلط جمانے کے لیے یہ ایک فرضی گینگ وار کا نام دے کر جعلی پولیس مقابلے کیے جا رہے ہیں، جعلی آپریشن کیا جا رہا ہے. آپ پولیس ریکارڈ کا اعداد و شمار یہ دیکھ لیں کہ لیاری ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر واقع آتا ہے. پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا اور دیگر ڈسٹرکٹ کا موازنہ کریں کہ وہاں پر جرائم کی تعداد کیا ہے. جنوری تا فروری 2011 میں پورے ساؤتھ زون میں 41 قتل ہوئے، 14 کاریں چھیننے کا رون ہوا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل ایسٹ زون میں 90 قتل، 17 گاڑیاں لوٹنے، 68 کاریں چھیننے کے ساتھ ایک بینک ڈکیتی ریکارڈ پر ہے. اسی طرح ویسٹ زون میں 69 قتل، 35 کاریں چھیننے کے واقعات ریکارڈ ہیں، جبکہ سال 2012 جنوری فروری میں صورتحال اس طرح آتی ہے کہ ضلع ساؤتھ میں قتل کے 35، کاریں چھیننے کے واقعات ویسٹ زون میں 69 قتل کے اور 35 کاریں چھیننے کے واقعات ریکارڈ ہیں. آپ ضلع سینٹر میں دیکھیں، ویسٹ میں دیکھیں، ایسٹ میں دیکھیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جس ضلع کے اندر لیاری موجود ہے وہاں پر جرائم کی شرح بہت ہی کم ہے، جو کہ 25% ہوتی ہے. تو آپریشن صرف لیاری کے اندر کرنا صاف ظاہر ہے کہ لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. اس پیپلز پارٹی کے گڑھ نے لیاری کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں کہ لیاری پاکستان بننے سے پہلے سے قائم ہے. یہاں کے لوگ ٹانگا چلانا، گھوڑا چلانا، گدھا گاڑی اور بوٹ پر کام کرتے ہیں. یہاں کے لوگ دولت مند نہیں ہیں، صرف ان کی محبتیں، قربتیں شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے تھی، اور وہ آج بھی جو شہید بھٹو سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جو انہوں نے عہد و پیما کیے تھے اس پر آج بھی قائم و دائم ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی کے اس گڑھ کو قبرستان بنایا جا رہا ہے صرف ایک شخص کی خواہش پر، جس کا نام ہے الطاف حسین. آپ یہاں پر ایک موازنہ کر لیں، میں آپ کو ایک ریکارڈ فراہم کر رہا ہوں. آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ مقام فکر ہے کہ پاکستان کے تاریخ ساز فیصلے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا INRO کا جو فیصلہ ہوا اس میں کرمنل جرائم 7,783 ملزمان کے سنگین جرائم کے مقدمات کی سماعت وہیں سے شروع ہونی تھی جہاں سے ختم کی گئی. ان میں سے ایسٹ زون کے 993 مقدمات کے 2,454 سنگین مقدمات کے 5,165 ملزمان کے خلاف سماعت نہیں ہوئی. آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے غیر ملکی شہریت کے حامل، پاکستانی نہیں ہے الطاف حسین، لندن کا باشندہ ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے غیر ملکی شہریت کے حامل الطاف حسین پر قتل کے 31، اقدام قتل کے 11
डॉक्टर फारूक सितार पर 23, बाबर खान गौहरी पर 5, मरहूम डॉक्टर इमरान फारूक पर 18, शुएब बुखारी पर 21, वसीम अख्तर पर 7, सलीम शहजाद पर 6, कंवर खालिद यूनुस पर 12 और डॉक्टर सफदर बाकरी पर 16 मुकदमात रीओपन नहीं हुए जबकि सूरत हाल ये है कि लियारी के सरदार उज़ैर जान बलोच, हबीब जान, जफर बलोच और दीगर अमन कमेटी के कायदीन पर दिन रात झूठे मुकदमात एक टाइम में, एक थाने में नहीं, 4 थानों में एक ही दिफात और एक ही टाइम में सीरियल वाइज FIR मेरे पास मौजूद है। आप इसको देख लीजिए कि हैरत होती है कि 51, 52, 53, 54, 55 सीरियल नंबर के साथ ये FIR जो है वो दर्ज हो रही हैं। ये इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी कमांड चौधरी असलम नामी दहशतगर्द जो कि बाकायदा CSP ऑफिसर नहीं है, जो एक सूबेदार से उसको SSP बना दिया गया, डायरेक्ट वो सिर्फ इसीलिए आया कि वो हुकूमत को मजबूत करने के लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मजबूत करने के लिए कत्ले आम जारी किए हुए कराची के अवाम का ये FIR का रिकॉर्ड है। आप ये देखिए सीरियल वाइज 51 से शुरू होती है, 100 तक जाती है, एक ही टाइम, मुख्तलिफ थाने, एक ही दिफात। ये कौन सा कानून है? कहाँ की इंसाफ की बात है? हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल आईनी पिटीशन दायर की है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा हमने कुर्बानियाँ दी हैं। बाहैसियत खुद मैंने 12 मई का पिटिशनर मैं हूँ, 13 महीने जेल काटी, मैं किडनैप हुआ, मेरी मिसिज किडनैप हुई, हमारे जिस्म जख्मों से चूर चूर है। टारगेट किलिंग केसेस के अंदर मैं पिटिशनर हूँ। हमने ये एक पिटिशन दायर की है। खुदा और रसूल का वास्ता देकर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कहते हैं कि लियारी की आवाज़ सुने, उन्हें इंसाफ दे। हम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आपको याद दिलाते हैं कि लियारी के अवाम ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से वफा की कसम खाई थी। आज भी हम वो कसम खाते हैं और आपको वास्ता देते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर साहिबा शहीद की रूह का कि खुदा के वास्ते आप इन अल्ताफ हुसैन ग्रुप के जंजाल से निकले और लियारी के अवाम के साथ इंसाफ करें और ये गैर जानिबदार ऑपरेशन बंद कराएं। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी साहब से मुतालबा करते हैं कि वो हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है, अफवाज पाकिस्तान पर हमें मुकम्मल एतमाद है। आइन के आर्टिकल 25 के तहत पूरे कराची में यकसा ऑपरेशन कराया जाए, उसमें इम्तियाज़ न बरता जाए, बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन कराया जाए। हम पाकिस्तान आर्मी को खुश आमदीद कहते हैं और मुतालबा करते हैं कि कम से कम 90 दिन के अंदर अंदर वो कराची को चार्ज संभाले। ये कानून ने, आइन ने भी इसकी इजाज़त दी है। लिहाजा हम कराची के अवाम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कराची में ऑपरेशन करके नाजायज़ असला बरामद करे। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो लोग JIT के अंदर डिक्लेयर हुए, अल्ताफ हुसैन से लेकर वसीम अख्तर तक, जो JIT के अंदर डिक्लेयर हुए कि उनके कहने पर कत्लेआम किया गया और किया जा रहा है, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिर इसके बाद मैं आपके सामने ये सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे बेनिफिशरीज हैं। किसी के बच्चे को, आप ज़रा तसव्वुर करें कि किसी माँ के सामने उसके बच्चे को और गोलियों से भूना जा रहा हो तो उस माँ का हाल क्या हो। आपके सामने वो माँ भी बैठी हुई है जिसके 9 साल के बच्चे को चौधरी असलम ने अपनी APC के नीचे टायरों के अंदर कुचल दिया। टायरों के नीचे नहीं, वो टैंकर जो चेन वाला चेन होती है। ये माएँ आपके पास है, आपकी अदालत है, हम मुद्दई हैं, इनसे पूछें, इनसे इनकी कहानियाँ पूछें, जो हकीकी और सच्ची चीज़ें हैं, जो वाक़यात हैं, ये आपके सामने है। मैं भाई को दावत दूंगा। मेरे पिंडी प्रेस क्लब के दोस्तों,
ہم لیاری والے آج آپ کی پاس اپنی فریاد لے کر آئے ہیں. ہم بھیک مانگنے نہیں، انصاف مانگنے آئے ہیں. اور آپ کی قلم کسی جابر کی کلشن کو، کسی دہشت گرد کے طاقت کے سامنے 1,00,000 گنا آپ کی قلم بڑی ہے اور طاقتور ہے. ہم آج پنڈی والے دوستوں سے کہیں گے، لیاری والے سب 17 لاکھ عوام کی آواز ہوں میں آپ سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ لیاری کا مقدمہ ہم پنڈی سے شروع کریں گے اور خیبر تک جائیں گے، اور خیبر سے سندھ میں جائیں گے، اور سندھ سے پھر ہم ہو سکا تو پھر اللہ کی عدالت میں جائیں گے کہ وہ قاتلوں کو، وہ ظالموں کو ختم کرے. اللہ کی ڈور لمبی ضرور ہے لیکن کمزور نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کراچی میں قبضہ کر لوں گا، کراچی کے عوام کو جینے کا حق چھین لوں گا، لیاری والوں کو ختم کر دوں گا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہر کراچی کو، میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، میرا باپ کراچی میں پیدا ہوا، میرا دادا کراچی میں پیدا ہوا ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں شہر کراچی کو نہ کسی فرعون کی طاقت کی ضرورت ہے اور نہ کسی شداد کی ضرورت ہے اور نہ کسی ہندوستان کے انگلینڈ کے دلال گبر سنگھ کی ضرورت ہے. اگر اس کو ضرورت ہے تو پاکستان کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے تو پٹھان کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے تو پنجابی کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے تو بلوچ کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے تو سندھی کی اور باقی جو چھوٹی چھوٹی قومیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لیاری کے اس مقدمے کو آپ تمام صاحبان ہمارے جج ہیں، ہم آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آئیں، اس مقدمے کو چلائیں. جو بھی سوال آپ کو کرنا ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مثبت دیں گے اور حق اور سچ کی بات کریں گے. اور ایک بار اور کہتا ہوں کہ منگا لیں آپ قرآن پاک، جو ہم بات کریں گے اس پر، قرآن پاک پر جو ہماری مقدس کتاب ہے اس پر ہاتھ رکھ کے بات کریں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. آپ کو بتا دوں کہ اپریل کے مہینے میں یہ ٹارگیٹ کلنگ اس گبر سنگھ نے شروع کی جو پولیس کا دہشت گرد ہے، اور 1 ہفتے تک اس نے ٹارگیٹ کلنگ کی. 22 مئی کو سندھ محبت ریلی جب نکلی، آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ اس پر اندھادھند گولیاں برسائی گئی اور اس میں ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے تمام مل کے 16 افراد آدھے گھنٹے میں شہید ہوئے اور 160 آدمی زخمی ہوئے. لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایوانوں میں وہ جو ساون کے اندھے بیٹھے ہیں، چاہے وہ زرداری ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اللہ سے ہیں. موت آنی ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ خامخواہ لڑائی اچھی نہیں ہے. ہم پیار کے لوگ ہیں تو آپ ہمارے کو ریلیف دیں. جناب ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اپنے تمام اینکر سے، تمام صحافیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جب وہ متحدہ کے رہنماؤں سے انٹرویو کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ذرا یہ بھی پوچھیں کہ لندن میں محمد انور راہ کا بھارت کا شہری وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان کی آرگنائزیشن کو کیسے چلا رہا ہے، کیسے کنٹرول کر رہا ہے. ایک راہ کا ایجنٹ جو پاکستان کا شہری بھی نہیں ہے. اس کا مطلب تمام طور پر صاف واضح ہے کہ جینا پور بنانے کی سازش ہو رہی ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ کا پروگرام ہے اور اب وہ ایک نئے صوبے کی شکل میں لا رہے ہیں جس کی وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی ذیلی تنظیموں سے نیا صوبہ بنانے کی بات کی ہے، تو نیا صوبہ لوگوں کی بھول ہے. یہ جائیں گے وہ اسی پلاننگ کے اوپر جس کو جینا پور کہتے ہیں. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان سے کراچی اور حیدرآباد کو کاٹ دیا جائے. تو خدا را یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں. میری جناب کوئی سوال ہو تو کسی سوال کر لیں، ہم دیں گے جواب اس کو.
ये अभी फोटो कॉपी कराने गए हैं भाई, फोटो का हमें प्रिंटर दस्तियाब नहीं था। इसके साथ ये बताएं, लियारी से एमएनए और एमपीए और एमएनए वो आपके साथ हैं, उनकी क्या राय है? ये हमारे शाहजहां बलोच साहब इसका जवाब देंगे। वो तो ये उनके वोटर भी हैं, सभी तकरीबन उनके वोटर थे, यानी कि उनके मुँह से लिहारी आएंगे। पुलिस चौधरी असलम आके एक हफ्ते में 52 लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना लेते हैं। लोग उनसे सवाल पूछते हैं, रफीक इंजीनियर से, नबील गबोल से, भाई आप वो किस मुँह से आएंगे? वो खुद उसी साजिश का एक हिस्सा है जो लियारी और कराची के खिलाफ साजिश मुर्तदा ने तैयारी में आते हैं। आप पूछ ले किसी लियारी के जर्नलिस्ट से पूछते कि आप उनको लियारी में घूमते फिरते या मीटिंग करते हुए जब पब्लिक स्पॉट पर आप देखते हैं वो लियारी क्यों नहीं आते, ये सवाल आप उनसे पूछे। और कोई सवाल है किसी का? इस ऑपरेशन में कितने अफराद, कितनी औरतें, कितने बच्चे के होगी, टोटल कितने अफराद पड़ेंगे? 52 आदमी शहीद हुए थे ऑपरेशन में और 160 आदमी जख्मी हुए थे। उसमें हमारी 2 बहनें भी शहीद हुई थी और ये हमारी तस्वीर का होना बच्चा, ये हमारे हाफिज 10 साल थी और इस बच्चे पर वो जो टैंक, चेन वाला टैंक होता है, वो उस पर चढ़ाकर इसको बिल्कुल कीमे की तरह गोश्त किसी के घर में 99 अफराद की ये लिस्ट है जनाब, जिन्हें गोलियां से जख्मी किया गया। 99 अफराद जख्मी है। भाई कुछ बिल्कुल तमाम FIR दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन आप समझते हो ये कोर्ट ऑर्डर है, ये कोर्ट ऑर्डर की FIR दर्ज की जाए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही भाई। कोर्ट के हुक्म के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही, ये कोर्ट ऑर्डर है। यानी ये सूरत हाल है कि स्टेट के अंदर स्टेट, हुकूमत के अंदर हुकूमत कायम की गई है और दहशत गर्दों ने हुकूमत कायम की है। कराची के अंदर दहशत गर्दों ने अपना तसल्लुत पर कायम कर दिया और तो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। आप अगर देखें तो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने ब्लैकमेल किया, प्रेसिडेंट की तकरीर में ब्लैकमेल किया और सिर्फ यही कि सरदार उजैर जान मीडिया बन रहा है, उसकी जबान बंद कर दी जाए। प्राइमरी से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कराया, पाबंदी लगवाई, यारी अमल कमेटी पर पाबंदी लगाई। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, खुली ब्लैकमेलिंग है। आपके सामने मीडिया है, ये हमारे पास जी 24 से कुछ अफराद NRO के तहत आप एमपीएम पर पाबंदी की बात नहीं कर रहे। हमने उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की बात की है कोर्ट के अंदर। हमने कहा है कि ये टेररिस्ट है, इनको टेररिस्ट करार किया जाए, इनके ऊपर बैन लगाया जाए। ये कैसे मुमकिन बात है? अल्ताफ हुसैन कहते हैं, आप रिकॉर्ड देखिए, अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि लंदन से बैठकर कराची में हुकूमत क्यों न की जाए, हमारे बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता, हम जब चाहे सब खत्म करते। ये आपका यहीं से इस्लामाबाद से प्रेस ने ये जारी किए थे बयानात होंगे, इन बयानात के ऊपर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो सीनियर दोस्त है उस्मान बछानी साहब, ये सर मैं सबसे पहले हमारे जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं तो उन्होंने ज़राए अबलाग से एक सवाल किया कि क्या कर रही हैं। ने ज़राए अबलाग से कहा काम कर रही हैं, तो ज़राए अबलाग ने जवाब दिया कि हाँ इंसाफ का दौर दौरा है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम जंग जरूर जीतेंगे, इसलिए बढ़ता है। दोस्तों, आज चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का और इंसाफ का चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में एक डंका है। चीफ जस्टिस एक सही मानों में इंसाफ के हामिल हैं, लेकिन आज हम इन्हीं चीफ जस्टिस से ये सवाल करते हैं कि लियारी के अंदर, लियारी में गरीबों, मिस्कीनों और मजलूमों का जो खून बह रहा है, उनका जो मुआशी कत्लेआम हो रहा है, उन्हें लियारी के एक दायरे के अंदर जो मुक़य्यद कर दिया है,
कराची जो एक इकोनॉमिकल हब है, लेकिन हमें उस हब के अंदर एक कुएं के अंदर बंद कर दिया गया है और बाकायदा एमक्यूएम के टेररिस्ट ने, एमक्यूएम के गैंगस्टर्स ने वहां पर बोर्ड आवेजा किए हैं। लियारी से निकलते हैं तो हमें हमारे आइडेंटिटी कार्ड को देखकर हमारे लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, उनके गुजरात को काट दिया जाता है, सरबुरीदा लाशों में बदल दिया जाता है और हमें बोरियों में पैक करके हमें लाशों की सूरत में लियारी के रहने वालों पर जिंदगी को तंग की जा रही है। और इस पर सिंध हुकूमत की जबान गुम हो गई है, कान बहरे हो गए हैं, आंखें अंधी और जहन मफलूज हो गया है, इसलिए कि एमक्यूएम की सीटों की उन्हें जरूरत है अपनी जायज और नाजायज रेजुलेशन पास कराने के लिए, अपने जायज और नाजायज बिल्स पास करने वालों के लिए उन्होंने एमक्यूएम को सपोर्ट दे रखी है कि ताकि जो चाहे वो करें। और यही वजह है कि इसमें उन्हें इन तमाम चीजों में सिवाय एमक्यूएम के मफादात के और कुछ नजर नहीं आ रहा। हम चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि खुदारा लियारी के वो मासूम बच्चे जिन्हें बख्तरबंद गाड़ियों से कुचला जा रहा है, जिन्हें उनके घरों के अंदर पुलिस के जरिए गोलियों से भूना जा रहा है, जहां आग और खून की होली खेली जा रही है और जहां पर छोटे मासूम बच्चे जो स्टूडेंट्स अपने हाथ में बैग लेकर भागते हुए आते हैं, गोलियां चलती हैं और उनके किताबें लहू से रंगीन होते हैं। हम लियारी वालों पर 100 रुपए एक्शन दें, आज खुद नोटिस दें, इसके लिए अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो खुदा की कसम लियारी वाले बेबस हैं, लियारी वाले मजबूर हैं। आज हम पंजाब हुकूमत से और पंजाब के एनजीओ से, पंजाब में गरीब लोगों से पूछते हैं कि अगर यहाँ पर आपका ज़मीर जिंदा है, अगर आपका शऊर जिंदा है, तो खुदा के लिए हमें बताएं कि लियारी वालों ने क्या जुर्म किया है, उन्हें 40 सालों में वोट देने की सजा दी जा रही है। लियारी वालों ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है कि उनके माँ और बहनों के आंचलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लियारी के अंदर, मस्जिदों के अंदर, खुदा के घरों में गोलियां चलाई जा रही है और लियारी की हर गली में, हर मोहल्ले में 7-7 8 लाशों के तोहफे दिए जा रहे हैं। हम मर रहे हैं, हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि लियारी की माँ बहनों के लिए, लियारी के मासूम बच्चों के लिए, लियारी के बुजुर्गों के लिए और लियारी के मजलूमों के लिए अगर आप सोमर पे एक्शन नहीं लेंगे तो लियारी के लोग यही सिंध हुकूमत और दूसरी हुकूमतों के कर मर जाएंगे। हमारा कोई गुस्सा नहीं, हम कुर्सी के आने में मखलूक गुलामी दे रहे हैं। खुदा के लिए हमारी मदद करें, खुदा के लिए हमारी मदद करें। पंजाब से और चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हमारी मदद करें, हम मर रहे हैं। मैं एक शहादत में नजीर भुट्टो पर और वहाँ पर जनाब जाकर शहीद शहजादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की रूह से सवाल करेंगे कि हमारी वफाओं का क्या ये सिला है कि हमारे बच्चों को गोलियों से चलने का। ये हमारी लियारी की सरबराह है और ये आपको वो हकीकत बताएगी जो बड़ी जिंदा है। एक बेकस लाचार लड़का, क्योंकि वो मेरा 15 साल से मेरे पास है सफीउल्लाह। उसको चौधरी असलम ने उठा के कत्ल करके बेदर्दी से मार दिया। जब मैंने पूछा कि ये लाश किसकी है, मैं सिविल अस्पताल गई, ये लाश किसकी है, लोगों ने कहा तुम्हारी नहीं है। मैंने नकाब उठाकर देखा तो वो मेरे भांजे का था। लेकिन आज उसको क्या करार दे रहे कि वो तालिबान था, क्योंकि लियारी के रहने वाले थे, इसलिए अब हमें तालिबान करार दिया जा रहा है। खुदा के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ, अपील करती हूँ, क्योंकि मेरे कराची में किसी ने नहीं सुना। मैं यहाँ सिंध पंजाब में आई हूँ अपने पंजाबी गैरतमंद भाइयों के पास कि मेरी अपील सुने, जस्टिस चीफ मोहम्मद चौधरी इफ्तार हुसैन साहब के पास कि मेरी अपील कबूल करें। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे चाहिए कि चौधरी असलम
डकैत चौधरी असलम डकैत ने बेदर्दी से जैसे कत्ल किया मेरे भांजे को, मैं चाहती हूँ जिस तरह के वजीर आजम को कटेरे पे खड़ा किया गया, मैं चाहती हूँ उसे भी इसी तरह खड़ा किया जाए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। मुझे इंसाफ चाहिए, खुदा के लिए मैं आई हूँ यहाँ पंजाब इतने दूर से, हम लोग को इंसाफ चाहिए लिहारी वालों को, खुदा के लिए मेरे पंजाबी भाइयों, आप लोग गैरतमंद हो, हमें हक दिला दो, हमें हक दिला दो। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जितने जुल्म लिहारी वालों के ऊपर हो रहे हैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। इतने दूर आए, इतने गर्मी में अपने छोटे बच्चों को लेकर आए, हमें हक दिला दो, बस हम यही कह सकते हैं। एक पॉइंट नोट कर रहे हैं आप लोग, तवज्जो दे दें। हम लिहारी वालों को डकैत गैंगवार कहते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक तारीखी बात है। लिहारी की तारीख में जितनी लिहारी की तारीख है और आज तक वहां पर दर्जनों बेटे हैं और आज तक एक बैंक डकैती नहीं हुई। वरना शहर में लालू के 90 गुलशन इकबाल लाठी और जो गुलबर्ग और जो दहशत का तो बचाव हो रहे उनके इलाकों में रोज बैंकें लूटी जा रही है। आप बिल्कुल इसका हवाला कर लें, मेरा नंबर नोट करें। अगर मेरी ये बात झूठी है तो खुदा की कसम आपकी अदालत में आकर अपना सर निकल करूंगा और मेरा सर कत्ल कर दे, मुझे मेरी गर्दन उड़ा दे। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि लिहारी में एक बैंक डकैती जो ऐसा कहाँ होता है, बैंकों में होता है। बैंकों में हम जब ड्यूटी नहीं रहे तो क्या गलागाड़ी चलाते, हम डकैत होते तो गलागाड़ी। देखिए गवर्नमेंट की अपनी बात है, मलक रहमान की अपनी बात है। उसने कहा हम 8 क्रिमिनल आदमी को पकड़ेंगे। मेरे भाई 8 क्रिमिनल आदमी को पकड़ने के लिए 8000 पुलिस वाले और 8 दिन तक ऑपरेशन किया। ये टारगेटेड ऑपरेशन होता है। आप खुद इंसाफ करो। मैं पिंडी के तमाम साथी दोस्तों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप हमारी खुदारा थोड़ी सी इस मामले में मदद करें। पंजाब असेंबली में भी अगर कोई आपकी रसाई हो तो आप वहाँ पर हमारी बात बताएं। आखिर में मैं लिहारी की जानिब से, लिहारी की बहनों बेटियों की जानिब से आप तमाम रावलपिंडी के प्रेस के दोस्तों का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमारा इस मुकदमे को सुना और मैं तवक्को रखता हूँ कि कल के अखबारात में जब आप आपकी कलम से, आपकी खूबसूरत कलम से जीनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी। आप दोस्तों का शुक्रिया। अमन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद